सर पिछले दिनों अटेंडेंस फाइन को लेकर कुछ नॉइज हुआ था। मैं अपने बच्चों को सिर्फ क्लास में देखना चाहता हूँ। सर योर सैलरी फंटास्टिक। चैट जीपीटी यूज करना एक चीटिंग है। चैट जीपीटी चीटिंग नहीं। सर फेवरेट मूवी धुरंधर। वो स्टूडेंट जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है वो सर अभी थका हुआ है, हारा हुआ है अपनी करियर को लेकर के, तो सर उनके लिए 2 लाइनें। अरे रुको अर्ज किया है। बढ़ती गर्मी में जैसे बर्फ की जरूरत पड़ती है उसी तरह अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, क्रिएट करनी पड़ती है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? अरे वही जो ओशन है ना। ओशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है where talent meet real opportunities. हैकाथन हो, आइडियाथन हो या इनोवेशन, गेट द वैल्यू you truly deserve right here. Enjoy free and premium quizzes and win exciting prize, tours and many more. इट्स नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म बिकॉज ये है आपकी पहचान। Your skill, your stage, your success. Join Ocean now. सर वेलकम टू द शो। एंड सर आई नो कि आपका शेड्यूल बहुत पैक्ड रहता है, फिर भी सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर वी आर एक्साइटेड कि सर आप यहाँ पे हो एंड कुछ न्यूज़ हमें सीखने को मिलेगा आपसे। तो सर कैसा लग रहा है सर आपको कैरियर टॉक्स में आकर के? It's being fantastic. Like it is always a pleasure when we are interacting our students. ओके सर। सर पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपका जर्नी कैसा रहा है, मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के सीजीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने तक का सफर कैसा रहा? It has been excellent. I mean to say, starting from my education when we were students. Yes, So always looking at it, the teachers, the plannings, the administration. So always had a mind that one day we'll be doing and conducting all these sort of things. So we were having the dream in mind, and I think it's being very pleasure that right now I am heading this the fantastic and best university in the north. yes. I must say the CGC University Mohali. सर आपने सीजीसी ज्वाइन कब किया था? 2 year back on 1st April 2024. 24। और सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? Fantastic. It has been fantastic. Like a lot of learning happened, new growth I have seen, the addition of infrastructure, renovation of labs, adding a lot of center of excellencies, adding a lot of MOU with the international communities. So it has been a fantastic. सर कॉलेज लाइफ में ना हर किसी का लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो आपके लाइफ में सर ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया था कि सर आप एक स्टूडेंट से एक लीडर, सीजीसी यूनिवर्सिटी का एक लीडर बन गए हो सर? See, you are very right that always we have a turning point. So year back in 2004, so when I was heading engineering college in Jind, Haryana. So at that time a lot of things were changing. AIST was like controlling the entire system. Students were going through the placements. The internet was like on the boom. Artificial intelligence was coming. So at that point of time, we were having the liberty to change the curriculum and pedagogy. So at that point of time, the campus owner, they gave me the responsibility ki Dr. Vinay, I would like to change the concept of delivery. I would like to change the motivation level of the students. I would like to change the journey of the students. Yes, sir. So from there, I was into the administration at that time. So from there to till end, like I feel that was my turning point when I start interacting, developing the documents for students like path, learning path. सर बी ऑनेस्ट सर, क्या कभी आपको आपके लाइफ में ऐसा फेज आया कि जब आपको लगा हो कि कुछ नहीं हो रहा है, सब छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो गए होंगे, तो उस चीज पर सर ऐसा उस टाइम पर सर ऐसा क्या चीज था जो सर आपको होल्ड करके रखा था? See, I'm talking about year back in 1998 to 2000. So at that time, I start preparing for the GATE examination and the NET JRF examination, UGC NET JRF examination. So continuously, I have been studying. A lot of preparation was happening, but after a lot of preparation, still I was not able to like qualify the NET JRF exam. So it was the day of June 2000 when I was sitting at home, and one of my friend, right now he's a senior data scientist TCS at Michigan State University, Michigan State, USA. So he called me up and he told ki Vinay, you please check your result. I told that from the past 3 times I have been like trying a lot,
but I don't think that it is going to be qualified. Yes, sir. Then he called me up again. You need to check it again. So I start checking it in, and I was checking in the lecturership. So there were two category there. One was the JRF category, other one was the lecturership category. So I was checking there the result, and I found that my name was not there in LS category. So I called up again my friend, and I told that no, it is not. Still, I mean to say, it has not qualified, and I was feel very demotivated. Then he called me up again, and ki Vinay, you just check it again. I feel that you have qualified. So I checked it again, and in the upper portion of the result I checked, and I found that I got qualified at All India rank 21. So that was like from demotivation to motivation level. So on very that day I learned one thing, that things will happen. The only thing what you need to do is you have to make your effort consistent and constant. This is the only key which I learned on that day, and from that day I never feel demotivated. I keep continuous trying if things are not happening. सर अकॉर्डिंग टू यू एक स्टूडेंट को मतलब कि स्किल्स के पीछे भागना चाहिए या फिर डिग्री के पीछे भागना चाहिए? See, this entire world, starting from the invention of wheel, fire, artificial intelligence, computer, internet, everything is based on skill. When at your home, your mother may not be having the degree, but she's preparing fantastic food for you. Yes, sir. That is the need. Yes, sir. What will happen that if the mother is having only degree and she is not able to cook the food? Nothing will happen. Yes, nothing. So in the same way, this entire world is based on the skill, right? If you have the skill to do something, that is more important. Whatever degree, that is hardly important. Degree at some extent giving you the feel and confidence factor that this person may be knowing something. Say for example, you are doing BTech degree, right? Yes, sir. So when you will be appearing for an interview, rather before appearing for any technical test, Yes, sir. the company will look at your degree that you are doing BTech. That means they are having one thought in their mind that these students must have studied these concepts. Yes, sir. So that is the basic requirement. So having degree for a particular position is a very basic requirement, but skill is the necessary requirement. Skill is the necessary and sufficient requirement. यस सर. सर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, बट सर जब हम पुराने गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे सर संस्कार, कैरेक्टर, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस होता था. बट सर इन प्रेजेंट टाइम आपको नहीं लगता सर, लगता है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है ये सिर्फ डिग्री दे रहे हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री लेने की रेस में दौड़ रहे हैं? देखो बच्चे, इसका नाम मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा. जो हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम है ना, पिछले 20-25 सालों या 30-40 सालों की मैं बात करूं ना, ये कंपटीशन पे बेस्ड हो गया है. ह्यूमन वैल्यू कैसे आएगी? जब आप बीटेक करने के लिए आए, आपने जेडब्ल्यू की प्रिपरेशंस की होगी या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी. यस सर. उस एग्जाम के अंदर आपके घर वालों से लेकर आपके टीचर्स ने आपको एक ही चीज सिखाई, कंपटीशन. यस सर. कंपटीशन क्या है? एक दूसरे से आगे निकलना है. यस सर. आपको ये नहीं सिखाया कि एक दूसरे के साथ आगे कैसे बढ़ना है. साथ कैसे आगे बढ़ना जो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है ना, वो कंपटीशन बेस्ड है, कोलैबोरेशन बेस्ड नहीं है. है, बेस्ट नहीं है. तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर वी हैव डिसाइडेड द कोर वैल्यूज फॉर द सिस्टम, Yes, and now we ensure that we take our students to the new heights through collaboration, not through competition. okay, sir. So competition and collaboration, these are the two aspects. Yes, sir. So this is the area where we create the difference in the entire world. सर जैसे सर मैं एक डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो सर जैसे बहुत सारे बच्चे ना एआई एंड चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट सर कई कहते हैं कि चैट जीपीटी यूज करना एक स्किल्स है, बट कई कहते हैं कि चैट जीपीटी यूज करना एक चीटिंग है. तो सर आप इसको किस तरह से देखते हो? जो भी नई इन्वेंशन आती है, चाहे वो मशीन युग आया है, चाहे वो डिजिटल कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई जिसका प्रोडक्ट आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हो. तो ये वो सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी लगाम हमें अपने हाथ में रखनी है.
Yes, sir. जितने अच्छे से आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर राइड कर पाओगे, Yes, sir. जितने अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। चैट जीपीटी चीटिंग नहीं है। नहीं है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल सही ढंग से करना स्किल्स है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी ठीक है, तो ये वो घोड़ा है जिसके ऊपर आपको घुड़सवारी करनी ही होगी करनी है। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है। हाँ। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, राइट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, उसको एज ए असिस्टेंट बना के इस्तेमाल करो। यस सर, अपना टाइम सही जगह पे इस्तेमाल करो। आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप Yes, करना है, आपको एनालिसिस करनी है डाटा साइंस के अंदर, Yes, sir. आप दोनों चैट जीपीटी के अंदर टास्क। बट कई लोग ये कहते हैं कि एआई उनका जॉब खा जाएगा या खा रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हो? जॉब कभी किसी का नहीं खाया जाता, जॉब के रूल्स बदलते हैं। Yes, ठीक sir. है, इंसान, मैं फिर वहीं पे पहुंचता हूं, जब व्हील्स थे तब भी इंसान की तभी जॉब इंसान- थी, हाँ जी, फिर जब- इंटरनेट आया तब भी तब- इंसान की जॉब जी। थी, कंप्यूटर आया तब भी इंसान की जॉब थी, Yes, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तब तब भी इंसान इंसान की की नहीं जरूरत थी। Yes, sir. इंसान का माइंड जो है ना, उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला है। हाँ, हम बात जरूर करते हैं, हम ये जरूर बात करते हैं कि जो काम इंसान को सीखने में 10 साल लगे, Yes, sir. चैट जीपीटी को वही काम को सीखने में 1 घंटा नहीं 1 घंटा लगता। लगता है। यस सर, ठीक है, यस सर, वो, लेकिन वो प्रोडक्ट इंसान का बनाया हुआ। इंसान अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करे, कहते हैं ना कि क्रिएटर्स बड़ा नहीं हो सकता, क्रिएटर से क्रिएटिविटी बड़ी नहीं हो सकती। यस सर, तो जो ये चैट जीपीटी है ना, ये क्रिएटिविटी है, और इसका क्रिएटर कौन है? हम लोग इंसान। इंसान। तो इंसान हमेशा अपनी क्रिएटिविटी करता रहेगा। आज चैट जीपीटी है, कल को कुछ और क्रिएटिविटी आएगी। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना चाइना सबसे आगे आता है। उन्होंने सर हर चीज बड़े स्केल पे किया है। तो सर क्या फ्यूचर में जो इंडियन स्टूडेंट्स है ये जो मतलब पीछे छोड़ सकता है प्रोडक्शन में चाइना वालों को? बिल्कुल छोड़ सकता है। उसके लिए आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन। 2 वर्ड आपको याद करने चाहिए, स्किल और कोलैबोरेशन। पहली चीज स्किल सीखो, दूसरी चीज कोलैबोरेट करो। ठीक है, जैसे आप डाटा साइंटिस्ट है, Yes, डाटा साइंटिस्ट की फंटास्टिक जो भी स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है उसको लर्न करो, यस सर, फिर मार्केटिंग के साथ कोलैबोरेशन करो, लीगल टीम के साथ कोलैबोरेशन करो, Collaboration अपना स्टार्टअप पिक करो। यस सर, जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट जो बनेगा ना Yes, मार्केट के अंदर, यस सर, यस सर, वो आपके कोलैबोरेशन से बनेगा। स्किल आपके पास होनी चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स के पास स्किल सेट होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल सेट्स इकट्ठे बैठो, काम करो, कोलैबोरेट करो और एक नए प्रोडक्ट के रूप में एस्टैब्लिश करो। इंडिया आगे बढ़ेगा। 2047 में डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बी द विकसित भारत। सर ये कोई नहीं रोक ये सकता इस रिकॉर्ड चीज हो को, रहा है सर। नो इशू। जो हमारे ऑडियंस है 22047 में देखेंगे उस टाइम तक। सर एक क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट डाउन हो या फिर गवर्नमेंट इशू के कारण जब किसी भी रीजन से आप स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं करा पाते हो, कुछ बच्चे बच जाते हैं प्लेसमेंट लेने से, तो सर उस टाइम पे पर्सनल लेवल पर सर आपको बुरा फील होता है कि मतलब आपके कारण तो नहीं बट आप चाहते तो कुछ और कर सकते थे उनके लिए? नहीं, देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लेसमेंट सीजन, नौकरियां कम ज्यादा होती रहेंगी। यस सर, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बच्चे को स्किल्ड प्रिपेयर करें, यस सर, स्किल सेट देके रखें। यस सर, क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगा ना, आपको मैं किसी भी रेगिस्तान में भी फेंक दूंगा ना, तो भी वहां पे आप कामयाब होकर निकलोगे। यस सर, तो हमारा सबसे पहला प्राइम मोटिव ये है कि चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, चाहे किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेरा बच्चा हो, उसका स्किल सेट फंटास्टिक होना चाहिए। फिर शायद मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है जीत की, यस तो सर, जीत तो होगी, जीत तो होगी। आज नहीं तो कल कल। होगी। यस सर। सर पिछले दिनों अटेंडेंस फाइन को लेकर कुछ नॉइज हुआ था, तो सर एज ए लीडर आप उसको कैसे देखते हो? वो एक पॉजिटिव सोच के साथ लगाया गया था। यस सर, उसके पीछे पॉजिटिव सोच मैं आपको बताता हूं। देखो, कई बार जब माँ बाप होते हैं या टीचर होते हैं ना, उनका एक ही मोटिव होता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। यस सर, चाहे माँ बाप है, माँ बाप आपने देखा होगा दंड देते हैं, Yes, कई बार आपका punishment पॉकेट करते हैं। मनी काट देते हैं, कई बार आपको थप्पड़ मार देते हैं। शायद वो सीजन नहीं रहा थप्पड़ मारने वाला, हमारे सीजन में हमने सब खाया है, टाइम से तो पहले सर हम भी खाते है ना। तो जो माँ बाप है या टीचर है, टीचर आपका यहाँ पे माँ बाप है। यस सर, सबसे पहले उसके पीछे का किसी भी जब हम निर्णय लेते हैं ना,
चाहे वो वाइस चांसलर निर्णय ले रहा है या प्रो वाइस चांसलर ले रहा है, चांसलर ले रहा है, उसके पीछे के इंटेंट को समझना होगा। जो फाइन था वो किस बच्चे को किया गया था? उस बच्चे को जिसकी अटेंडेंस कम है, यस सर, उस बच्चे को फाइन लगाया गया था, लगाने का प्रोविजन किया गया था कि जिसकी अटेंडेंस 75% से कम है। यानी कि आप इसको दूसरे ढंग से समझिए यस, कि हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चा क्लास में लगा ले 75%, उसको तो कोई फाइन नहीं है। कोई फाइन नहीं है। ये एक छोटा सा डर था जो हम देना चाहते थे बच्चे को कि वो क्लास में आए। क्योंकि अभी दिक्कत क्या हो रही है, देखो आप क्लास में गए, आपके क्लास में आज 30 बच्चे बैठे हैं या 35 बच्चा बैठा है या 45 बच्चा बैठा है। टीचर ने कंटेंट डिलीवर किया, टीचर ने एक टॉपिक डिलीवर किया, हाँ जी सर, उसमें से 10 बच्चे आज नहीं आए, 10 बच्चे अगले दिन आ रहे हैं। जो बच्चे 10 अगले दिन आएंगे ना, उनको वो पहले दिन वाला कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो वो बाकी बच्चों को भी लर्निंग हैम्पर करेंगे, उनकी लर्निंग भी हैम्पर करेंगे, जिससे कि आपका जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होगा। यस सर, तो बहुत जरूरी होता है कि क्लास की कंटिन्यूटी बनना, ये टीचर के लिए भी जरूरी होता है और बच्चे के लिए भी जरूरी होता है। और ये इनफैक्ट जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो एक वरदान होता है ये। यस सर, बट कोई बात नहीं, कई बार बच्चे जिद करते हैं, ऐसे माँ बाप के साथ भी करते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। मैं उस पूरे सीन को इस तरह से लेता हूं कि मेरे बच्चों ने मेरे से जिद की, उस वक्त मैंने उनकी जिद मान ली तो मैंने उनको अलाउ कर दिया। बट मैं फिर भी ये कहूंगा मैं अपने सारे बच्चों को इस ब्लॉग के थ्रू कि वो एक बहुत पॉजिटिव मूव था, एक ही इंटेंट के साथ था कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ क्लास में देखना चाहता हूं, उनकी कामयाबी देखना चाहता हूं। फाइन लगाना कभी कोई उद्देश्य था ही नहीं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का एक स्पीच है कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और पहुँचते पहुँचते 25 पैसे, उससे कम पैसे पहुँचता है। तो सर जो चीज़ आप ये कह रहे हो सर, बोल रहे हो सर, बट सर आप जब एग्जीक्यूट करते हो और जो सर ग्राउंड लेवल पर बच्चे इसको कंज्यूम करते हैं सर, वो वैसा वो पहुंच नहीं पाता है चीजें। फिर उनको जो प्रॉब्लम आता है सर, वो डायरेक्टली आपसे फिर बात भी नहीं कर सकते हैं, फिर बच्चे वहीं पर रह जाते हैं। और जो सर आप कुछ उनके लिए बनाते हो नया, मतलब समथिंग, तो वो सर आपके पास ही रह जाता है। फिर ये चीज, ये जो गैप है सर, ये गैप इस गैप को दूर करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो आपने देखा होगा कि ओपन हाउसेस हम करते रहे हैं, आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होती है। दूसरा एंगल, तीसरा एंगल हमने अपना जो IQAC डिपार्टमेंट, आपने नोटिस किया होगा अगर आप क्लासरूम में बैठे होंगे तो IQAC की टीम क्लासरूम में आके बैठती है, उसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और एक IQC सेंट्रल लेवल की टीम होती है। वो बाकायदा ये चेक करती है कि क्लासरूम की डिलीवरी कैसी है, उसने कंटेंट कैसे पिक किया है, राइट टाइम पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है, एंगेजमेंट लेवल कैसा है, PPT का डिजाइन कैसा है, क्लासरूम एम्बियंस कैसा है। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम कंटेंट, infrastructure, delivery methodology, presentation and student engagement, on all factor that IQAC team is being checked। और वो चेक करके वो सारी रिपोर्ट्स being an vice chancellor मेरी टेबल पे आती हैं। we discuss that what are the action we need to propose। और ये कोई ऐसे एक्शन नहीं है कि हमें कोई फैकल्टी के ऊपर एक्शन लेना है। we create a lot of faculty development program for our faculty member so that कि जो इम्प्रूवमेंट मुझे ग्राउंड लेवल पे चाहिए वो हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने नोटिस किया होगा कि यूजली मैं अपने ऑफिस में, मेरे पास अगर मैं दिन के 8 या 9 घंटे है, 8 से 9 घंटों में से 2 से 3 घंटे बच्चे बैठे होते हैं मेरे ऑफिस में। तो मैं बच्चों के साथ काफी इंटरेक्शन रहता है और क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरे बच्चे हैं जो मेरे ब्रांड एम्बेसडर है और आने वाले युग के लीडर हैं। और ये बात कहने की नहीं है, ये मेरा ही मतलब मोदी साहब का ही विजन नहीं है, ये मेरा खुद का भी विजन है। मैं अपने देश को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहता हूं। मैं जब सुबह उठता हूं और शाम के सोने तक ये जरूर कोशिश करता हूं कि आज बिफोर गोइंग टू बेड मैंने अपने देश के लिए क्या किया। सर रैंकिंग और बिल्डिंग तो हर जगह होती है, बट सर अपने जो CGC यूनिवर्सिटी है उसको ग्रेट क्या बनाता है सर? CGC यूनिवर्सिटी को ग्रेट बनाता है इसका एम्बियंस। इस एम्बियंस के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि CGC यूनिवर्सिटी के अंदर 360 डिग्री डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। पहली बात आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स के लिए अभी नया जिम्नेजियम तैयार हो रहा है या आपका बहुत सारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी पे आपका ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद प्लेसमेंट डिपार्टमेंट अपना ध्यान दे रहा है। उसके बाद आपका रिसर्च
रिसर्च एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट, वो आपका ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद आपका टीबीआई है, वेंचर नेस्ट है, स्टार्टअप्स है। दैट मींस 360 डिग्री वी आर गिविंग ए प्लेटफॉर्म्स टू द स्टूडेंट्स। जैसे एक पेरेंट्स बोलता है ना Yes, sir. कि भाई मैं तो एक काम कर सकता हूँ, मैं तो तेरे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ, आगे पढ़ना तेरा काम है। Yes, sir. इसी तरह से सीजीसी यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर 360 डिग्री। बच्चे आए, उसका यूटिलाइज करें और अपने आप को डेवलप करें। जो भी ड्रीम वो लेके आए अपना ड्रीम पूरा करें। Yes, sir. Sir, what is the one quality जो आप चाहते हो हर फिजिशियन अपने साथ लेकर कैंपस से बाहर जाए? स्किल एंड कॉन्फिडेंस। सर अब रैपिड फायर क्वेश्चन है सर कुछ। सर सक्सेस या सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन। सर लाइफ में सेक्रीफाइस कितना जरूरी है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्योंकि सर जैसे हमने अनिल सर का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा सर लाइफ में सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। No, यदि आप sir. सेक्रीफाइस नहीं करते हो नहीं, तो मैं अगेन आई एम सेइंग दैट आई डोंट हेल्प पीपल, आई एम्पावर देम। पावर दें। सर सीजीसी इन वन वर्ड? CGC in one word, I wouldn't like to describe it in one word, but CGC is providing the human values to the students. सर योर सैलरी? Fantastic. It is good for me. सर ये बता दो कितने आईफोन आ जाएंगे, आजकल ट्रेंडिंग भी चल रहा है। It's good for me and I'm fully satisfied whatever I am getting. और अगेन आई एम सेइंग, बहुत सारी चीजें जब आपने मुझसे पूछा था सेटिस्फेक्शन जरूरी है, Yes, sir. तो वन शुड बी सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाई किसी चीज से भी नहीं हो सकते। मैं जब मेरी सैलरी 6,000 थी हाँ जी सर। तब भी मैं मजे करता था, अच्छा 60,000 हुई तब भी मजे करता हूँ और आज भी मजे करता हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, बस आपको उस ईरा में ओरा के अंदर मजे कैसे करने जिंदगी के, वो आपको देखना है ना। Yes, sir. आपको मैं सुबह बढ़िया से, मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा आपके ब्लॉग के थ्रू, जी सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना आपकी हेल्थ है। यस सर। अगर आप हेल्दी नहीं हो ना, यस सर। आप अपना कोई ड्रीम पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम मॉर्निंग का ये होना चाहिए, सुबह उठो, अपने शरीर को पूरे दिन के लिए तैयार करो, यस सर। बी हेल्दी। सर जिम और योगा? बोथ। बोथ। ओके सर। योगा is to keep your body and mind calm. Gym is to build muscle. Both are required. If you don't have muscle, Yes. you won't be able to work. Yes. आपने देखा होगा बुढ़ापे के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो मसल्स की कमजोरी की आती है। Yes, तो sir. जिम बिल्ड यू मसल, योगा विल कीप यू काम। एंड सर फेवरेट मूवी? माय फेवरेट मूवी एट आई मीन टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है फेवरेट, बट मैं कल धुरंधर 2 देख के आया, बड़ा मजा आया। सर फैमिली के साथ गए थे या फिर अकेले मैं गए? फैमिली के साथ जाता हूँ। सर आप वाइस चांसलर नहीं होते तो फिर क्या होते अभी? मैं वाइस चांसलर नहीं होता तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में 5 से 6 साल अच्छी जूडो खेली है मैंने। यस सर। और मैंने जूडो इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे एकेडमिक में आगे जाना था, ओके सर। क्योंकि मेरे दोनों ही ड्रीम मेरे साथ चलते थे कि मैं अच्छा स्पोर्ट्स, अपना अच्छी फिजिक्स रखना चाहता था। बट मैंने कहा कि ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि सेक्रीफिकेशन, यस सर। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा मैंने जूडो को सेक्रीफाई किया, हाँ नहीं, जी। सेक्रीफाई नहीं किया, मैंने अपने ड्रीम को चुना। ड्रीम को चुना आपने? दोनों में से किसी एक को चुनना था Yes, sir, मुझे, yes, sir. तो मैंने सेक्रीफाई नहीं, मैं कोई गिल्ट नहीं है मेरे दिमाग में कि मैंने जूडो छोड़ दी या मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, वो वाला नहीं, गिल्ट नहीं है। मेरा ये ड्रीम था, मैंने ये ड्रीम चुना, वो ड्रीम नहीं था तो मैंने नहीं चुना। आने वाले 5 इयर्स में डॉक्टर विनय गोयल सर खुद को कहाँ देख रहे हैं? जैसे मैं आज लगभग 15,000 बच्चों की जिंदगी को प्रभावित करता हूँ, हाँ जी सर। मैं आने वाले 5 साल में मैं ये कोशिश करूंगा कि अपने पूरे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरी बातों से, मेरे दिशाओं से प्रभावित हो, और न कि केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर मानसिक शांति जरूर स्टैब्लिश कर पाऊं। जो आज मैं देख पा रहा हूं, चाहे वो एनर्जी को लेके लड़ाई है यूएसए और ईरान Yes, sir, की, yes, sir. चाहे यूक्रेन और रशिया को लेके लड़ाई है, ये सारी लड़ाई फिजिकल नीड्स के लिए है, ये सारी लड़ाई फिजिकल नीड्स के लिए है, पावर के लिए है, पावर के लिए। जबकि ये दोनों ही चीजें नहीं जरूरी है। यस सर। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पूरे विश्व के अंदर कैसे शांति स्थापित कर सकूं, ताकि हर आदमी
चैन से सो पाए। सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते वक्त जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो? देखो, स्ट्रेस होता है, बट स्ट्रेस तब होता है जब आप कुछ करना चाहते हो और नहीं कर पाते हो, यस सर। है ना। और उसके अंदर बहुत सारी आउटर फोर्सेस होती हैं। यस। आपने मुझे बताया, अभी आपसे आपने जिक्र किया था ना कि आपने फाइन लगाया और फाइन वापस लेना हाँ जी सर। पड़ा था मुझे। मुझे स्ट्रेस हुआ था कि मैं बच्चों की जिंदगियां बदलना चाहता था। मैं इस कैंपस को एक नए रूप में स्टैब्लिश करना चाहता था, जिससे कि मेरा बच्चा पूरी क्लास के अंदर पूरी क्लास अटेंड करे। बिलीव मी, और जिस दिन आपका पूरा स्टूडेंट क्लासरूम्स में होगा, मोर देन 75% अटेंडेंस होगी एक बच्चे की, आप देखना इस कैंपस के अंदर आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ। दिस इज फॉर श्योर। यस सर। बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग के आते हैं अपने पास, हाँ जी सर। वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की तैयारी करके आते हैं, यस उनके मन में एक रह जाती है कसक कि यार मेरा आईआईटी नहीं हो पाया। यस सर। जैसा मैंने बोला कि मेरे अंदर कसक थी कि मेरा आईएएस क्वालिफाई नहीं हो नहीं हो पाया, पाया। ऐसी कसक रह जाती है इंसान के अंदर कि यार मेरा आईआईटी नहीं हो पाया। आईआईटी क्यों चाहते हो? कि बढ़िया कैंपस मिलेगा, मेरे को बहुत बढ़िया Environment अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट ऑफर Placement, हाँ मिलेंगे। जी सर। तो ये प्लेसमेंट ऑफर तभी इंक्रीज होंगे जब आपका एकेडमिक लेवल इंक्रीज होगा। एकेडमिक लेवल तब इंक्रीज होगा जब आपकी क्लासरूम्स अच्छे चलेंगे, क्लासरूम में सारा बच्चा क्लास में आएगा। जब सारा बच्चा क्लास में आएगा तो कंपटीशन से कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ेंगे, और जब हम कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो आईआईटी जैसा प्लेसमेंट पैकेजेस यहाँ डेली मिलेंगे आपको। सर लास्ट क्वेश्चन, सर वो स्टूडेंट जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो सर अभी थका हुआ है, हारा हुआ है अपने करियर को लेकर के, तो सर उनके लिए 2 लाइनें 3 लाइनें जो भी है सर उनके लिए थोड़ा बोल दो। देखो, थकना, हारना, अपने जीवन से डिमोटिवेट होना, ये तभी आपके सामने आएंगे अगर आपने अपने जीवन में कोई गोल, कोई टारगेट नहीं बनाया। एक बार आपने अपने जीवन में कोई टारगेट बना लिया तो थकना अलाउड है ही नहीं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। अगर आप अपने गोल सेट किया है, अगर उसमें शारीरिक ताकत की जरूरत है, उठो अपने शरीर को ताकतवर बनाओ। अगर आपको मानसिक ताकत की जरूरत है, उठो अपने मन को और मानसिक मनस को ताकतवर बनाओ। क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और मानसिक शांति, मानसिक सेटिस्फेक्शन के लिए, मानसिक ताकत के लिए आपको किताबें और अपने गुरु का ज्ञान लेना पड़ेगा। दोनों में से जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, यही अवेलेबल है सीजीसी यूनिवर्सिटी में। और मैं स्ट्रोंगली बिलीव करता हूं, आप जिस सपने के साथ इस कैंपस के अंदर आए हैं वो आपका सपना डेफिनेटली पूरा होगा। सिर्फ आपको उस सपने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग के लिए पूरा सीजीसी यूनिवर्सिटी कैंपस, बीइंग ए वाइस चांसलर, ऑल टीम्स एंड डायरेक्टर्स, वी आर कमिटेड टू डू दैट। थैंक यू सर सो मच, एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला।